डिहन लाल, my lords. ये इनके खिलाफ क्या है The सर? appellant has been convicted under section 120B for 4 years, my lord. He is in One- jail. My lords. झाड़ू लाल He has been acquitted by the trial court. There are three accused. convicted by the trial court. My lords. डिहन लाल ना? DNLR was He has been convicted by the trial court. I am 120B, 420, 409 इनके खिलाफ एलिगेशन So only for 120B conviction is under. मेरे भाई आप आ जाओ जजमेंट के पैराग्राफ पेज नंबर 2 पे आ जाइए ना। Let us kindly come to page number 46. अरे आप छोड़ो, जजमेंट के पेज नंबर 2 पे आइए, My lord. इंटरनल पेज नंबर 2 ऑफ द जजमेंट। आपका जवाब आ गया क्या सत्यम जी? Conviction is for 4 years. जवाब देना है कि नहीं देना है? I'll place it on. नहीं भाई, But that is for 10 years. तो मुझे मालूम है आपको देना है कि नहीं देना है। चलो हम क्वेश्चन थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। normally, Malat, less than 10 years, we do not file written objection. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कहाँ कंपल कर रहे हैं आपको। Malat. आपको देना है कि नहीं इतना तो बता दो। नहीं देना, चलो। तो डिहन लाल का आप देखिए इंटरनल पेज नंबर 2 पे आपको 120B, 420, 120B, 409, 120B क्या एलिगेशंस हैं आपके खिलाफ? Allegations are these, my lords, but conviction is under 120B. Yes. कोई बात नहीं, आपका वो जो ऑफेंस है 120B है, पर वो साथ में जिस ऑफेंस के लिए 120B है वो तो रहेगा My ना। lords. My lords, the applicant is in jail since 10/5/2024. During the trial also he was. आपका एलिगेशंस क्या है सर? My lords, that is kindly come to para 4. पेज नंबर 15। मैं रिटा अभियोजन कहानी संचय में इस प्रकार है कि प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता अभियोजन टेकाम ने पुलिस अधीक्षक सिवनी के समक्ष अभियुक्तगण के विरोध इस आशय की लिखित आवेदन प्रस्ताव किया कि वह ग्राम सुहेनसो थाना हुगली का निवासी है, उसे मुख्यमंत्री निवासी और ग्राम स्वराज योजना के तहत जिला व्यापार। तो ये बैंक का मैनेजर कौन था? दैट इज प्लांट नंबर 1 सुदीप Guha. तो डिहन लाल का क्या रोल था उसमें? DN Lal was, my lords, he was a businessman, so he had just delivered the material which he has just delivered the material to the complainant, my lords. That is the only. कितने का मटेरियल आपने My सप्लाई lords, किया? 4 lakhs. कहाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट है? My lords, there is no specific finding as well as, my lord, against the present जी applicant. सत्यम जी, इनके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं? In fact, allegation is Malat that total loan of 4 lakh is set to be sanctioned. Whereas it has been informed to victim Malat that it is for 70 lakhs, out of which only 25. 70,000? 70,000, sorry, I'm sorry. 70,000 Malat. Out of which 25,000 is being given to the victim. That is a prosecution case. In fact, when it has been investigation has been made Malat, it is loan has been taken for centering Malat. And it has been stated Malat that the centerings Malat is in fact, Malat, when during investigation, para 74 is important. What the complainant has said about the supply of the goods by you? In fact, Malat, what he has stated, he did not get it. He did not get it. Para 14 of the cross examination, lower court has discussed this thing, Malat. In fact, in cross examination, it has been asked Malat that whether Dihan Lal has committed any offense. So he stated Malat that he had not. But lower court has considered. अच्छा, मतलब आपका गवाही आज का आपका गवाह जो है First time. जजमेंट दिएगा आज? No. I'm not saying so. Lower court has considered the same, Malat. अरे वो छोड़ो ना, आप क्या कहना क्या चाहते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ कि that the argument which can be raised by the appellant, Malat. अरे वो तो छोड़ो, वो उस बात को छोड़ो। कंप्लेनेंट या आपका क्या केस है? इन्होंने सामान सप्लाई किया कि नहीं? नहीं किया। नहीं किया। कंप्लेनेंट ने कहा था? We have supplied. अच्छा, ये हॉस्टाइल भी हो गए? My lord, sorry, he is hostile. In fact, we have supplied the material to the complaint, my lord. कहाँ है The सर only सप्लाई का? allegation is that सप्लाई का मटेरियल सप्लाई करने की गवाही कहाँ है सर? my lord. Page number 90. Page number 43, para 91. इसको कैसे डील किया ट्रायल कोर्ट ने? पैराग्राफ 12 को? Paragraph 12 को कैसे डील किया है?
para 104. पैराग्राफ 104. 10। In paragraph 76, my lord, D1 D1, kindly see para 76, page number 38. With regard to, he has submitted the affidavit that he has ये settled. D1 किससे सीज हुआ था सर? D1 किससे सीज हुआ है? डीहन कंस्ट्रक्शन 4 लाख की सामग्री सामान से प्राप्त किया हूँ। जी सर, ये किससे सीज हुआ है? किसने प्रोड्यूस किया सर ये? हम्म, सर जी प्रोड्यूस कर सर ये सीज किसने, बैंक ने दिया है क्या, किसने दिया है? सर पैरा 76 पढ़ देता हूँ। उसमें बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से बचाव दिया गया कि फरियादी अभिनव टेकाम के द्वारा दिनांक 10/2/20 को सेंटिंग सम्मान प्राप्त होने की संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदर्शित पीढ़ी दी थी। उक्त संबंध में समन कुमार झा के प्रति परीक्षण खंडिका 22 में स्वीकार कराया गया कि लोन स्वीकृति पश्चात अपने व्यवसाय के लिए समान प्राप्त होने की संतुष्टि अधिग्राही संबंधित बैंक में पेश सर कर। वो तो ठीक है, प्रोड्यूस सर- किसने किया है? सर वो स्पेसिफिक हम्म, क्योंकि ये तो बैंक के पास होना चाहिए ना। But that is dated of 2020. After हम्म, सर वो ये जो बिल जो था ये कब मिला है सर? आपके यहाँ से पैसा कब कब रिलीज हुआ बैंक से? सर एक रिकॉर्ड में नहीं आया है इसमें। हैं? रिलीज कब हुआ इसमें नहीं आया सर। क्यों नहीं आपने क्यों नहीं रिलीज कर लिखा? डीडी का आया मगर रिलीज का नहीं आया कि रिलीज हुआ है। 11/8/15 को कंप्लेंट होती है और ये अरविंद पे काम है। yes. सर 29/4 पैरा 97 में आया है। इस पर अगर अभियोजन साक्ष्य सुमन अभी कुमार केंद्र पे काम। जी सर। सर पैरा 97 पेज नंबर 45 हम्म, रिलीजिंग इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य सुमन कुमार झा ने प्रतिपक्षण खंडिका 10 में स्वीकार किया कि डीएन कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के द्वारा शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा हुगली के को दिनांक 29/4/15 को सेंटिंग प्लेट का बिल 100 का पैसे का दिया था जो कि प्रतिष्ठ PD1 है और PD1 में BCB भाग पर। जी अच्छा, तो ये जो है 9/6/15 को आपके नाम से वो बैंक ड्राफ्ट इश्यू होता है डीहन के नाम से, तो ये बिल तो वो महाराष्ट्र बैंक में मिलना चाहिए, वहां से क्यों नहीं प्रूफ हुआ सर? सर द ये ओनली किसने प्रोड्यूस किया था? D1 किसने प्रोड्यूस किया है?
सर ये बिल मिलेगा तब तो बैंक से पैसा रिलीज होगा ना, तो ये बिल तो बैंक में होना चाहिए था। एक मिनट चाहिए। कंप्लेनेंट को D1 दिखाया होगा ना। तो D1 प्रोड्यूस किसने किया है? अभियुक्त डीहन लाल। तो डीहन लाल के पास ये बिल कैसे आ गया ओरिजिनल? है सर। सर D1 के इसको पास ओवर करते हैं सर, D1 हम्म? इसको पास ओवर करते हैं सर। तो आप ये बताइए डीहन लाल के पास ये बिल कैसे आ गया? सर क्योंकि ये बिल जब बैंक में जमा होगा तभी तो पैसा रिलीज होगा। सर ये बिल तो बैंक में होना चाहिए था। सर या ये चार्जशीट का हिस्सा है क्या, है क्या? इसको देख के बताओ, सर चार्जशीट का हिस्सा है। That has been considered by the lower court in 109. Doubt has been raised on this issue that this bill is being dated after वो तो ठीक है, पर ये दो माह किसके बाद। किसकी कस्टडी से चार्जशीट का हिस्सा है क्या? Well, it is said to be a part of charge sheet. एक सेकंड अगर चार्जशीट का हिस्सा है तो यार फिर तो चीजें दूसरी हो जाएंगी। Malad ma kindly see that has been discussed. सर प्रोड्यूस किसने किया वो? Para 104. That is an argument. taken आरोपी डीहन श्रीवास्तव, ये तो आरोपी से मिला है सर। सर द ओनली एलिगेशन इज दैट सर आप ये देखिए चार्जशीट में। अच्छा अब इसका सीजर मेमो भी देख लेते हैं। ये तो गया सर, ये आपके पास कैसे रह गया? सर इसको पास ओवर कर दीजिए। एक सेकंड सर, थोड़ा सा सीजर मेमो देख लेते हैं ना। जी। ये बिल आपके पास कैसे था? आप मुझे बताइए, क्योंकि चार्जशीट में लिखा है ये आरोपी डीहन से प्राप्त ये बिल, आपके पास कैसे बिल है सर ये? अरे वो रिकॉर्ड थोड़े मांग रहे हैं, वो अपनी मर्जी से पासवर्ड ले रहे हो। सर पास ओवर हाँ पासवर्ड कर रहे हैं।